Hello dear children, welcome to your English video class for 23rd June. I'm sure you all are doing good, you all are keeping a good health and you all are safe in your homes. Do take necessary precautions children. जो भी प्रिकॉशन हमें फॉलो करना है, जो भी अपने सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं वो सारे आप सब फॉलो करते रहो बिकॉज दिस वायरस इज नॉट ओवर एज येट एंड कब ओवर होगा वी डू नॉट नो. सो टिल देन वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस टू कीप आवरसेल्फ सेफ. So because of this virus only, the schools are closed. We are having online classes. Online classes तो हो रही हैं हमारी and at the same time we are uploading videos regularly. Videos of all the subjects are uploaded every day on a daily basis and these videos are children like your classroom teaching only. जैसे जो आप क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, these videos are like that only. आप वीडियोस देखोगे तो एकदम आपको समझ लगेगा कि दिस इज यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम ओनली. ओके, सो डू वॉच द वीडियोस रेगुलरली. रोज देखो वीडियोस एंड कंप्लीट योर वर्क, whatever work you have to do in your book and whatever work you have to do in your notebook. Complete your work simultaneously by watching the videos. Okay children, now we are doing poem number 2 which is A Box of Crayons. Now we all are familiar with the poem and I'm sure by now you must have memorized also the poem. It's a very small poem. I had a box of crayons all shiny, straight and new. I lent a friend one crayon and oops, it broke into two. My friend said, I'm sorry, but I said, it is fine. Now we both can share. Half is yours and half is mine. So this poem conveys the message of sharing. ठीक है ना. शेयरिंग मतलब अगर हमारे मर्जी के अगेंस्ट कोई काम हो जाता है तो उसको हम कैसे पॉजिटिव तरीके से, कैसे उस सिचुएशन को हम अपने फेवर में कर सकते हैं. कोई अपनी पर्पसली अपनी नई नई चीज तो नहीं तोड़ेगा, बट सिंस इट ब्रोक, टूट गई, तो उसने उस सिचुएशन को अपने फेवर में करते हुए कहा कि ठीक है, फाइन, नाउ वी कैन शेयर इट. Okay, so we have done the comprehension exercises, that is true or false we have done, and we have done the question answer also. And yesterday I told you the rhyming words also. Rhyming words are the words which sound similar. ठीक है, जैसे few, new. So spelling is different, meaning is different, but they sound similar. Same sound नहीं है, similar sound है. So here you have to find two words from the poem that rhyme with new. New के साथ का एक rhyming word चाहिए and fine. ठीक है, तो new के साथ का rhyming word क्या है? I had a box of crayons, all shiny, bright and new. I lent a friend one crayon and oops, it broke in two. So new and two. New का rhyming word क्या है? Two. New and two. And then next is fine. My friend said sorry, but I said it is fine. Now we both can share. Half is yours and half is mine. So mine is a rhyming word for fine. Fine, mine. This you have to write in your book only. Okay, page number is 2020. Page number 20, poem number 2. English course book, Wordsworth English Reader. Okay. Now B is, what do you think friends are for? Discuss with your partner two things that friends should do together. This you can say is like life skill. कि what do you think friends are for? मतलब फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि फ्रेंड्स क्यों होते हैं, फ्रेंड्स किस लिए होते हैं. ठीक है. देन डिस्कस विथ योर पार्टनर. पार्टनर मीन्स द चाइल्ड हु इज सिटिंग विथ यू. सो नाउ सिंस वी आर नॉट कमिंग टू स्कूल,
So we can discuss among ourselves only what two things that friends should do together. कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो फ्रेंड्स को साथ में करनी चाहिए. The first is what do you think friends are for? फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? फ्रेंड्स क्यों होते हैं फ्रेंड्स के साथ? Who will answer me? कौन बताएगा मुझे? You can say फ्रेंड्स के साथ हम खेलते हैं. आप जब स्कूल आते हो तो फ्रेंड्स के साथ यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, यू सिट विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ खेलते हो, बैठते हो. अगर फ्रेंड के पास कोई चीज नहीं है, कलर्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, बुक नहीं लेकर आया है, तो यू शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स. और इफ यू हैव नॉट यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर पेंसिल बॉक्स टुडे, तो योर फ्रेंड शेयर्स हिज और हर स्टेशनरी विथ यू. ठीक है, कई बार होता है कि कोई टिफिन लाना भूल गया, तो फ्रेंड्स आपस में शेयर करके टिफिन खाते हैं. किसी का टिफिन गिर गया, तो व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? एंड एट टाइम्स इट सो हैपेंस कि फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो जाती है, इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं दैट दे आर लाइक अ फैमिली मेंबर ओनली. कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा फ्री होते हैं. हम उनके साथ कोई भी बात कर सकते हैं. वी कैन डिस्कस विद देम एनीथिंग. बहुत बार होता है कि बहुत सारी बातें हम अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स तक के साथ भी नहीं शेयर करते, बट वी शेयर एवरीथिंग विथ आवर फ्रेंड. इतनी अच्छी फ्रेंडशिप अगर हो गई है तो. ठीक है, बिकॉज व्हेन वी मेक फ्रेंड्स तो हम अपनी चॉइस से बनाते हैं कि किसके साथ हमको फ्रेंडशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी है. किसी के साथ कई बार होता है, किसी के साथ भी सडनली हमको एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है, बातचीत करना अच्छा लगता है, एंड वी बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. धीरे धीरे करके फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है. सो वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स जिनके साथ हम बहुत एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ वी कैन शेयर आवर हैप्पीनेस. कोई अच्छी बात हम शेयर कर सकते हैं. वी कैन शेयर, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है उसको हम शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ. इफ वी आर अपसेट फॉर समथिंग वी शेयर इट विथ फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स के साथ हम कई बार सारी हर तरह की बात अपनी शेयर कर सकते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स आर फॉर? Friends are for, you can say, caring. I'm not writing the answer. इसको आपको कहीं लिखना नहीं है. You can discuss. This is just for discussion. So what are friends for? Friends are for caring. Friends are for sharing. ठीक है, हम फ्रेंड्स एक दूसरे की केयर करते हैं. We share things with each other. We share our thoughts with each other. अपनी हम बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. ठीक है, तो friends are for sharing. Friends are for caring. Okay? Friends, कई बार हम फ्रेंड्स हमारे लिए जो है हमारे रिलेटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मतलब वी शेयर सच अ गुड बॉन्ड विद देम. हम उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं कि वी बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद देम. ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज राइट टू थिंग्स दैट फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. अभी जैसे आप जब स्कूल आते हो, राइट टू थिंग्स. अभी इस पोएम में तो ये कंसिडर कर रहे हैं कि यू आर कमिंग टू स्कूल. आप स्कूल आ रहे हो, स्कूल में सब साथ हो. तो जब बुक प्रिंट हुई थी तब तो नहीं पता था कि कोरोना वायरस आएगा एंड वी विल बी कन्फाइंड टू आवर होम्स. सब हम घर के अंदर बंद हो जाएंगे. तो राइट टू थिंग्स दैट फ्रेंड्स शुड डू टुगेदर. फ्रेंड्स को कौन कौन सा काम एक साथ करना चाहिए? एक तो है कि फ्रेंड्स जब आप स्कूल आते हो तो आप सब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपना लंच खाते हो. बहुत कम बच्चे होते हैं जो अलग कोने में जाके अलग से अपना बैठ के खाते. जिसके साथ फ्रेंडशिप है, सब बच्चे अपने अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके अपना टिफिन खाते हैं. तो एक तो वी कैन से कि वी शुड सिट टुगेदर एंड हैव लंच टुगेदर. ठीक है, हमको अपना लंच एक साथ करना चाहिए. एंड और क्या फ्रेंड्स को करना चाहिए? ठीक है, फ्रेंड्स साथ में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं. दे कैन कंप्लीट देयर होमवर्क टुगेदर. दे कैन कंप्लीट देयर क्लास वर्क टुगेदर. ठीक है ना. कई बार ऐसा होता है कि सपोज एक कोई बच्चा, सारे बच्चे तो एक से नहीं पढ़ने में होते हैं. कोई बहुत अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा पीछे रहता है. तो कई बार होता है फ्रेंड्स जो है अपने जो फ्रेंड थोड़ा पीछे रहते हैं उनको पढ़ाते भी हैं, उनको वर्क करने में हेल्प करते हैं. तो फ्रेंड्स शुड सिट टुगेदर एंड हैव लंच. एक साथ लंच खाना चाहिए, एक साथ खेलना चाहिए, है ना. क्लास में एक साथ बैठना चाहिए. सो व्हेन you come to the class, you do everything together. ठीक है. Now we would be doing word building exercises today. ठीक है, जैसे word building मैंने बताया था कि word building exercises में हम
we enrich our vocabulary. Word, W-O-R-D, word, B-U-I-L-D-I-N-G. Word building. In word building, we enrich our vocabulary. कैसे करते हैं, कैसे हमारी vocabulary improve होती है, अच्छी होती है? Because we think of new words. Building का मतलब है बनाना. तो in word building we think of new words. तो जब हम new words सोचेंगे तो हमको और words दिमाग में आएंगे ही definitely. Okay? So when we think of new words, जब हम new words सोचेंगे तो हमको और words याद आएंगे. ठीक है, और वर्ड्स आएंगे तो हमारी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, हमारी वोकैबुलरी एनरिच होगी. ठीक है, तो वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आर टू इंप्रूव आवर वोकैबुलरी. ओके, नाउ इन वर्ड बिल्डिंग, एज आई हैव टोल्ड यू, इन ईच लेसन वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट इन ईच लेसन. लाइक लेसन नंबर 1 में हमने क्या किया था, वी डिड वर्ड चेन. लेसन नंबर 1 में हमने वर्ड चेन किया था. जो फर्स्ट पोएम थी अल्फाबेट सॉन्ग, उसमें हमने किया था कंप्लीटिंग द वर्ड्स विथ वॉवल्स बाय फिलिंग इन वॉवल्स. तो उससे हमें वर्ड्स पता चले. लेसन नंबर 1 में हमने वर्ड बिल्डिंग में वर्ड चेन किया था एंड कंडीशन क्या थी कि न्यू वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड. ओके, देन इन लेसन नंबर 2 व्हाट डिड वी डू, वी डिड making as many words as possible from a given spelling, from the letters of any given spelling. कोई भी स्पेलिंग है उसके जो लेटर्स हैं उससे हम कितने ज्यादा से ज्यादा न्यू वर्ड्स बना सकते हैं. सो टुडे इन वर्ड बिल्डिंग वी वुड बी डूइंग सिंगुलर एंड प्लूरल. इन वर्ड बिल्डिंग SINGU singular and plural, SINGULAR and PLURAL, and this is also known as one and many. Singular and plural, this is also known as one and many. Singular means single. ठीक है, सिंगल का मतलब है एक, one single. तो singular means one and plural means when it is more than one. ठीक है, एक से ज्यादा होने पर ही it becomes plural, whether it is 2, 3, 5, 10, 20, 100, कितना भी नंबर हो. The moment it is more than one, it is plural. ठीक है, तो singular means one, singular को हम क्या बोलते हैं, one बोलते हैं, and plural को क्या बोलते हैं, plural is more than one, so plural is many. ठीक है, one and many, singular and plural, one and many. Okay, like page number, children turn to page number 21 in your English course book. This is the main course book, page number 21. Word building, singular and plural. Single is one, and the moment it is more than one, even if it something is 1.5, it becomes plural. कोई फ्रूट है, एप्पल है, एक one apple, single apple, and if it is even half apple is more, 1.5, it becomes apples. 1.5 apple हम नहीं बोलेंगे, 1.5 apples. Okay, now see on page number 21, singular and plural. Singular means one, plural means many. Many में 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है. Okay, now look here, one car. ठीक है, सिंगल, दैट इज वन कार. तो वन कार भी हम लिखते हैं, वी कैन राइट कार ऑल्सो. एंड 2 कार्स, जैसे वन से ज्यादा है, 2 है, तो कार के साथ हमने क्या लगाया, कार्स. जैसे 1 कार, एंड द मोमेंट इट इज मोर देन 1, 2, it becomes CARS. We have added S. CARS, 2 cars. ठीक है. Another example, 1 flower or many flowers. Many मतलब बहुत सारे, तो 1 से ज्यादा है, we can write the number
as well as we can write many. ठीक है, many मतलब बहुत सारे. So अगर one है then it is flower. If it is many मतलब बहुत सारे हैं. FLOWERS, flowers. Okay, S is added. So children, that means when we write the plural of any word, ठीक है, अगर हमको सिर्फ क्वेश्चन है कि राइट द प्लूरल फॉर्म, सो वी ओनली राइट दिस, वी डू नॉट राइट वन और मेनी. वन एंड मेनी वी राइट व्हेन द नंबर इज गिवन. सपोज नंबर इज गिवन 1 car, 2 apples, 3 bananas, 4 mangoes, 5 buses and so on. ठीक है. एंड मेनी मतलब बहुत सारे, मेनी चिल्ड्रन. ठीक है, मेनी टोमेटोज, मेनी मैंगोज. ठीक है, पूरी बास्केट भर के काउंट नहीं कर पा रहे, मेनी मैंगोज, बहुत सारे मैंगोज. ठीक है, तो मेनी मतलब बहुत सारा. तो वेदर वी से द नंबर और वी से मेनी, प्लूरल में वी ऑलवेज एड एस विद द मेन नेमिंग वर्ड. कार, फ्लावर, दीज आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. ये क्या नेमिंग वर्ड्स है ना, कार है, फ्लावर है, these are all naming words. One के साथ तो they remain the same, but when we write the plural form, we add s with these words. इन words के आगे हम s लगा देते हैं जब हम plural form में बात करते हैं. Okay? So one car, 2 cars. One flower, many flowers. Okay? Now write the plurals for the following words. This you have to do in your book only. Okay, this you have to do in your book only. पहले मैं book का करवा दूं, and after that we would be doing some work in notebook. Write the plurals for the following words. Write the plurals. Plurals फिर से मैं बता दूं. Plurals में plural means when it is more than one. ठीक है, more than one में we can write the number, we cannot write. जरूरी नहीं कि हम हर समय numbers लिखें. ठीक है, तो write the plurals for the following words. Following words means the words which are already given. जो दिए हुए words हैं उनका आपको plural लिखना है. Okay? Now first I will write the words. After that we will write the plural. Bat, star, dog, chair and kittens. What are kittens? Kittens किसको बोलते हैं? Kittens are the babies of cat. Okay. Now see here children. Since it is not written one bat or one star or one dog, one chair, one kitten, we will also simply write the plural form. We will not write 1, 2, 3, 5 bats or 1, 2, 3, 4, 7 stars or 3 dogs or 3 chairs or 4 kittens. We will not write like this. We will simply write the plural form. Okay? Because here also only the singular form is given. The plural form is not given. So we will write only the plural form. So first is bat. इसके पहले जो देखा था कार का हमने क्या देखा? CARS and flower का flowers. That means to make anything plural. किसी चीज को plural बनाने के लिए हम उस word के आगे end में s लगा सकते हैं. ठीक है? प्लूरल हम किसका लिखते हैं? वी कैन राइट द प्लूरल ऑफ ओनली नेमिंग वर्ड्स. अभी ग्रामर में जब नेमिंग वर्ड्स या नाउन पढ़ेंगे तो हम सिर्फ जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वी कैन राइट ओनली देयर प्लूरल. किसी भी वर्ड का हम प्लूरल नहीं लिखते हैं. ठीक है? जैसे जो एक्शन वर्ड होते हैं स्लीप, तो स्लीप को हम स्लीप्स नहीं बोलेंगे बिकॉज नेमिंग वर्ड के साथ दे टेल अस द नंबर. ये सारे जो एक्शन वर्ड्स है दे आर एक्शन वर्ड्स. ये सारे काम बताते हैं. तो इनके साथ हम एस नहीं ऐड करते. वी एड एस विथ द नेमिंग वर्ड्स ओनली. ठीक है? जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं दे आर
singular and we write their plural. Okay, so जैसे car का CARS, cars, flower का flowers. That means we have added s with the naming word. जो main naming word है उनके साथ हमने s add किया है. So here also we will make the plural in the same manner. जिस तरह से हमने अभी plural बनाया, इस एक्सरसाइज में भी हम सेम मैनर में प्लूरल बनाएंगे. फर्स्ट इज बैट, एंड एज यू कैन सी देयर आर 1 2 3 4 5 बैट्स. ठीक है, बट सिंस इट इज रिटन बैट, तो वी विल ऑल्सो राइट ओनली प्लूरल फॉर्म ऑफ बैट. तो सिंस इट इज मोर देन 1, हाउ मेनी बैट्स कैन यू सी? वी कैन सी 5 बैट्स. इन दिस पिक्चर वी कैन सी 5 बैट्स. तो दैट मीन्स मोर देन 1, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? BATS, bats. ठीक है, the plural form of bat would be BATS, bats. Now STAR, star. Here you can see 7 stars. There are millions of stars in the sky. So 1 star, and then 7 stars. 1 2 3 4 5 6 7 stars. तो अगेन वी विल राइट ओनली STARS. ठीक है, स्टार तो कभी भी अकेला नहीं होता है. देर आर 1000 and 1000 ऑफ स्टार्स इन द स्काई. स्टार इज नेवर अलोन. तो 1 स्टार और मेनी स्टार. जैसे ये बैट है, 5 बैट्स, 6 बैट्स, 8 बैट्स, 10 बैट्स, 2 बैट्स, कुछ भी बोल सकते हैं. स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, मिलियंस ऑफ स्टार, थाउजेंड ऑफ स्टार्स, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. Then dog. Again dog is a naming word. Dog क्या है? Dog एक naming word है. तो dog का हम plural लिख सकते हैं dog, and the plural is DOGS, dogs. ठीक है, किसी भी word का plural बनाने के लिए what do? We add s with the naming word. Then chair. Chair, it is a single chair. We can see only one chair. तो plural form would be CHAIRS, chairs. ठीक है. देन किटन, मैंने गलती से किटन लिख दिया. इट इज किटन. किटन इज द बेबी ऑफ अ कैट. तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? KITTENS, किटन्स. द प्लूरल वुड बी KITTENS, किटन्स. तो चिल्ड्रन, इन ऑल वर्ड्स यू हैव सीन दैट वी हैव एडेड s. सारे नेमिंग वर्ड्स में हमने s ऐड किया है टू फॉर्म प्लूरल्स. Now there are some other rules also for making plurals. ठीक है, कुछ और भी रूल्स है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. वो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे देन वी विल लर्न इन डिटेल. यहाँ पे हम प्लूरल सिर्फ s ऐड करके बना रहे हैं. वी आर मेकिंग द प्लूरल फॉर्म ओनली बाय एडिंग s. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ s ऐड करके प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं. ओके, now write these in your book, children. Page number 21. Okay, you have to write here. ठीक है, and after you write in your book, then I will give you some singular plural to be written in your notebook. Notebook में लिखने के लिए मैं आपको कुछ singular plural दूंगी. First you write this. आप ये लिख लो. With this we come to an end of this poem. Okay, इसके साथ ये पोएम हमारी खत्म हो गई. Now either I will start lesson number 3 in course book or I will start unit 3 in grammar. Okay, so I hope everyone has written this. सारे आप ये लिख लो. Then I will give you some singular plurals which you have to write in your notebook. ठीक है, ये लिखने के बाद मैं कुछ singular plural लिखवाऊंगी जो कि आपको लर्न भी करना है एंड अपनी नोटबुक में भी लिखना है. ओके, तो शुड आई रब दिस? इसको मैं इरेज करती हूँ. आई होप एवरीवन हैज रिटन. नाउ क्वेश्चन इज राइट the plural of the following
words. Okay, write the plural of the following words. First I will write the words. ठीक है, पहले मैं words लिखूंगी और उसके बाद after that I will write the plural forms. Okay, so the words are, this you have to write in your notebook. जो मैं अभी लिख रही हूँ इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है. First word is BALL ball. Second word is EGG. Third is COW cow. Fourth is boy. Fifth is rat. Sixth is kite. Seventh is book. Eighth is bottle. Ninth, PENCIL, pencil. And 10th is flag. Okay, these are the 10 words. Now you have to write the plurals. Now as I told you, how do we write the plural? Plural हम कैसे बनाते हैं? We add S with the main words. These are all children naming words which can be counted. Ball, egg, cow, boy, rat, kite, book, bottle, pencil, flag. All these words can be counted. These are countable nouns. ठीक है, countable naming words. We can count these. अगर कहीं पे कुछ bottles पड़ी हैं तो हम उनको count कर सकते हैं. ठीक है, we can count these words. So for making plural, what do? We simply add S with the naming word. हम naming word के साथ क्या करते हैं? We simply add S. ठीक है, तो जैसे ball है, ball का क्या हो जाएगा? Let me take a blue pen. Ball का BALLS. What have we done? We have simply added one S. ठीक है, ball का balls. Egg, EGGS. Here also we have simply added S. ठीक है, cow, COWS, cows. So children, how do we make plural? Plural हम कैसे बनाते हैं? By adding S to any naming word. कोई भी naming word है उसमें हम S add करके plural बनाते हैं. Okay? Then boy, BOY, boy. Plural would be BOYS. So what are we doing? We are simply adding S. Okay? Last में हम सब में S लगा दे रहे हैं. RAT, rat. RATS, rats. ठीक है? RAT, rat. RATS, rats. KIT, kite. Kite मतलब पतंग. KITES, kites. Kite का मतलब पतंग भी होता है and kite is a bird also, चील. ठीक है, that is also kite. Then book. BOOKS, books. Bottle. BOTTLES, bottles. Then pencil, PENCIL, pencils. And flag, FLAGS, flags. Okay, so it is very simple. Now children, for making a word plural, there are certain rules. ठीक है, so this is the simplest rule. ये सबसे सिंपल वाला रूल है विच वी आर डूइंग राइट नाउ टू एड एस. ठीक है, किसी भी नेमिंग वर्ड के एंड में एस ऐड कर देना. दैट इज द सिंपलेस्ट रूल विच वी आर डूइंग राइट नाउ. नाउ यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. राइट सिंगुलर, प्लूरल. Okay, I'm simply writing, write this in
योर इंग्लिश नोट बुक। ठीक है, पोएम 2 का जो वर्क है आपको इसके स्पेल वेल वर्ड्स करने हैं, देन यू हैव टू डू वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी स्मॉल, एंड देन यू हैव टू राइट दिस इन योर इंग्लिश नोटबुक। ठीक है, बॉल बॉल्स, एग एग्स, काउ काउज, बॉय बॉयज, रैट रैट्स, काइट काइट्स, book books, bottle bottles, pencil pencils, flag flags. Write this in your English notebook. This you have to write in your English notebook. Okay children, so write this in your English notebook. मैं साइड में यहाँ पे आ जाती हूँ, आप इसको अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखो। ठीक है, मैं साइड में हूँ। I hope children you all have written this. सबने लिख लिया है. So that is all for today. And after writing this, you have to memorize this also. लिखने के बाद इसको याद भी करना है. Okay? So that is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.